Good evening, everyone. Myself, Ankit Kumar from Aspire IAS. And for all the students, today we are providing a very small package regarding interim budget, which our finance minister presented today. So today, as a first institution, we are providing you with the proper notes which are available on Aspire website, as well as detailed analysis about some of the major concepts regarding the budget. Now, what exactly is a budget? Budget होता क्या है? So budget is the particular type of annual statement where government is providing their revenues, क्या आया, their revenues and the expenditure, क्या गया, क्या आएगा और क्या जाएगा, क्या आया था और क्या गया था. कहने का मतलब है, it means the budget of any year is provided you the information associated with 3 years. For suppose the budget is of 2024. So 2024 is having the figures of 2022, 2023 and now 2024. 2022 का होगा revised estimate जो actual बन चुका है. That means 2022 का now we are getting the actual part. कितना actual में revenue था और कितना खर्चा था. 2023 revised estimates and 2024 का we are now having the future estimates. That means government एक estimate लगाएगा. Government is providing the estimate क्या आएगा और क्या जाएगा. इसी से we are calculating the deficit. First deficit is budget deficit. How much we assume as expenditure, how much we received as a revenue, if some deficit, budget deficit. And for this, we are ordering the RBI to print the currency under ways and means advances. So in this, I am not in a condition to elaborate everything, but I am trying to give you an overview picture about every concepts. Okay. Then fiscal deficit. Fiscal deficit is guided by Kelkar Committee, 2003 FRBM Act, Fiscal Responsibility Budget Management Act. Under this, we are providing 4 parameters: revenue deficit, budget deficit, revenue deficit, fiscal deficit, tax GDP ratio, government borrowing. Initially, our target was 3%. Then we revised it to 4.8% by 2025-26. This year, it is approximate 5.3%. Fiscal deficit, as per one economist view, is good as it is resulting into developmental work. But if it is continuously high, it is resulting into non-planned subsidies, fruitless expenditure, which are causing the inflation. Primary deficit, when fiscal deficit minus interest payment. Tax GDP ratio, we want to increase at least 25% of the GDP. NK Singh Committee modified it. Fiscal deficit target 2.5, revenue deficit target 0.5. Even the overall government expenditure should decrease. Public debt management should be there. Now this year budget is not a full budget because 2024 is a election year. 2024 हमारा election year है, तो this is not a full year budget. It is an interim budget. So interim budget में we cannot provide any big announcements or the big policy measures. It is just some of the important part and parcel of the government expected revenue expenditure which they want to do till the conduction of the election. Even the government are using it as a propaganda. Government इसको use करता है as a propaganda to somehow influence the citizens that they will vote in the favor of the present government. So this budget is an interim budget. After the election, when the overall results will come, the new government will come out with their full-fledged budget. तो इस साल का जो बजट है that is interim budget, but articles of the Indian Constitution will remain same. Article 110, 112, 113, annual financial statement, appropriation bill as well as money bill. तो हमारा 110 जो है that is part of money bill. Now budget दो तरह का होता है, revenue budget and capital budget. Capital word in economics we are using specifically for those budget which are related to long-term asset and liabilities of the government. Building, roads, interest payments, more than 1 year, loan repayment, ये सब इसमें आएगा आपका capital budget. Revenue budget, which is less than 1 year, it is providing the current taxations, revenues, and the current expenses of the government within a financial year. Financial of the government means 1st April to 31st March.
बजट पहले मार्च में आता था, बट वी प्रीपोन्ड इट टू फरवरी, ताकि वॉट एवर इज द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर वो हम कर सके। वोट ऑन अकाउंट होता है बिकॉज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा। पूरा डिस्कशन होने के बाद, पूरे एनुअल प्रोसेस के बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। दीज आर सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ बजट। तो व्हाट एग्जैक्टली द बजट, व्हाट एग्जैक्टली आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, आई ऑलरेडी डिस्कस, ये सब मैंने आपको बताया। नाउ वी आर डीलिंग विद द ओवरऑल समरी। For this, we already put all the notes on the Aspire website. So everyone, please log into www.aspireias.com and we are starting our journey. तो अगर आप aspireias.com खोलेंगे, then please move to the overall, please move to the overall website and the current affairs. When you open the current affairs, editorial plus आपको section दिखेगा and please click to Union Budget 2024-25. Now here we can discuss each and everything in an elaborated manner. तो बजट का ईयर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। द फर्स्ट बजट इज प्रेजेंटेड, इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1860। ये पीटी के लिए आप याद रखेंगे। पहला बजट 1860 में आया था बाय जेम्स विल्सन of the British Indian government after independence. India's first budget was presented in 1947 by Finance Minister R.K. Shanmugam Chetty. तो ये भी पीटी में आ सकता है, R.K. Shanmugam Chetty। आप सब बच्चे अपने नोट्स बनाते रहिएगा because it is very important, especially people who are appearing in the overall UPSC interview examinations. The Union Budget accounts for the government finance during the financial year April 1 to 31st March. Then the budget 2024-25 is the final budget of the NDA government. It is the interim budget. Now we can know what is interim budget. It is a type of temporary financial plan. ये एक temporary financial plan है, only to run the essential government services, nothing else. Then full budget and interim budget में अंतर क्या है? A full length budget is a comprehensive financial plan that covers all aspects of government spending, revenue, policy, etc. Interim budget temporary, only to withdraw the money for the limited period of time, that is April-June period, from Consolidated Fund of India. हम already जानते हैं there are three important funds. Number one, Consolidated Fund. Not a single penny can be withdrawn without parliamentary approval. तो आपको ₹1 निकालने के भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। यूके में इसी को कंट्रोलर बोलते हैं। तो इंडिया में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में सिर्फ ऑडिटर काम करता है, लेकिन यूके में कंट्रोलर ऑडिटर दोनों काम करते हैं। कंट्रोलर का मतलब है वहां पर अथॉरिटी विच कैन प्रोवाइड द असेंट रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ मनी। इसी तरीके से इंडिया के अंदर इफ यू वांट टू विड्रॉ एनी मनी, इवन अ सिंगल पैनी, वी नीड द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। कंटीजेंसी रिजर्व फंड, इट इज फॉर इमरजेंसी पर्पस। आफ्टर विड्रॉल वी नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। निकालने के बाद वी नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, क्योंकि इसका पैसा, ऑल द मनी इज कमिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड देन पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। पब्लिक अकाउंट भारत का क्या है? एक लायबिलिटी अकाउंट। हियर वॉट एवर वी आर सेविंग, वी आर डिपॉजिटिंग इट, और गवर्नमेंट को वापस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट। अंडर दिस गवर्नमेंट मेंटेन सम रिजर्व फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस विच गवर्नमेंट कैन अगेन टेक फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सारा पैसा कहां से निकलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फुल बजट is presented by the government that is going to continue into the next fiscal. Interim budget is presented by outgoing government. Major policy changes? No major policy changes. Annually, interim budget is presented during election year only. Detailed discussion, interim budget is devoid of usual scrutiny, therefore debate is very less or no debate. Long-term vision, continuity, and only prevent financial disruption till election. So this is the overall process regarding the general and interim budget difference. Then union budget is the annual financial statement of the union government. Who is preparing? Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. दो तरह का बजट होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म। दो तरह के इसमें पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए, दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक बजट रिगार्डिंग वेरियस स्कीम एंड प्रायोरिटीज। पार्ट बी रिगार्डिंग फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल मींस आर्टिकल 110 सिमिलर टू मनी बिल विच इज टॉकिंग अबाउट टैक्स प्रोविजंस। तो हमेशा याद रखना, ये भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में आ सकता है, पार्ट ए क्या होता है और पार्ट बी क्या होता है। तो पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिगार्डिंग वेरियस सेक्टर्स, एंड पार्ट बी इज रिलेटेड टू फाइनेंस बिल विच इज इक्विवेलेंट टू द मनी बिल। तो फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल एज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिटरमाइन इट इज अ मनी बिल और नॉट। दैट्स व्हाई बजट इज ओनली द ओवरऑल टास्क विद इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। याद रखना, ये सब चीजें पॉलिटी से रिलेटेड है बिकॉज इट इज अ मनी बिल
और मनी बिल पूरी अधिकार होता है लोकसभा का, राज्यसभा उसको अपने आप ही पास करेगी। नाउ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसी को बजट बोलते हैं। 110 हमने बता दिया, फाइनेंस बिल दैट इज मनी बिल। की डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम बजट स्पीच, अदर मेजर डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, डिमांड फॉर ग्रांट्स, हर डिपार्टमेंट अपनी डिमांड रखता है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना खर्चा करना है, दैट इज आर्टिकल 113। एंड देन फाइनेंस बिल आर्टिकल 110। तो फाइनेंस बिल का हमारा आर्टिकल कौन सा है? 110। फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, केलकर कमेटी, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन और फिजिकल प्रूडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आर्टिकल 226 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बजट का उद्देश्य क्या था? व्हाट एग्जैक्टली आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट? द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, रिसोर्स एलोकेशन एंड फिजिकल स्टेबिलिटी। ये पीटी मेंस इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट? वी ऑल आर नोइंग दैट इंडिया इज अ सोशलिस्टिक कंट्री, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। सेकंड, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, हमें सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है, इक्वालिटी को। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स बराबर बटे। एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू प्रोफाइल बैलेंस रहे। देन विल्सन, मैंने पहले बता दिया था 1860 में, जेम्स विल्सन हिस्ट्री में। देन आर.के. शगुमन चट्टी, फर्स्ट बजट वाज सपोज टू लेस्ट 7.5 months। फिर उसके बाद और बजट आ गए। देन प्रोसेस ऑफ बजट, अनाउंसमेंट ऑफ द डेट, हलवा सेरेमनी, हलवा बनाया जाता है, खिलाया जाता है। बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जाता है, अब डिजिटल दिया जाता है क्योंकि कागज बजाते हैं। प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, बजट के ऊपर गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री मीटिंग्स होती हैं। फिर आज 1 फरवरी फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच देगा, डिस्कशन होगा, डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी होगा, देन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स अलग अलग, एंड पासिंग अप ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, और सबसे आखिर में फाइनेंस बिल। ये आखिर की 3 स्टेज याद रखनी है, फर्स्ट डिमांड फॉर ग्रांट, देन एप्रोप्रिएशन बिल एंड देन फाइनेंस बिल। फिर बजट कितने तरह के होते हैं? पहला, बैलेंस बजट, एक ही साल में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इक्वल, दैट इज बैलेंस बजट। डेफिसिट बजट, खर्चा ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम आया। सरप्लस बजट, एक्सपेंसेस कम हुए, रेवेन्यू ज्यादा आया। जीरो बेस बजट, जिसमें कोई बेस नहीं लेते हैं, हर साल एक नया साल होता है, ये यूपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। एन अप्रोच टू प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम स्क्रैच और जीरो बेस, इट इज अ सिस्टमैटिक कॉस्ट मैनेजमेंट process that consider the efficient allocation of income to fixed expenditure, variable expenses and saving। तो ये एक वो बजट होता है जिसके अंदर हम हर चीज जीरो बेस के साथ लेते हैं और हमें पता चलता है हर साल की रिक्वायरमेंट क्या है। जेंडर बजट, which is only specific to women or transgender or any other gender, that is known as gender budget। तो जेंडर बजट में all the policies, department, program should have specific gender allocation, that is known as gender budget। फिर सब हिस्टोरिकल आइकॉनिक टर्म्स हैं, जैसे ब्लैक बजट 1973-74 में था बाय वाई, दैट इज वी चावन, जब हमारा फिस्कल डेफिसिट 550 करोड़ का था। कैरेट एंड स्टिक बजट वीपी सिंह के समय बोला जाता है, जिस समय मोड बैट आया था, मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्स। एक तरफ हमने कैरेट दिखाई थी, एक तरफ डंडा मारा था टैक्स का। इपोकल बजट मनमोहन सिंह ने दिया था, एलपीजी रिफॉर्म्स को बोलते हैं इपोकल बजट। ड्रीम बजट, लाफर कर्व, लाफर मतलब जब टैक्सेशन से रिलेटेड चीज होती है, when government is somehow lowering the tax rate, that is known as Laffer curve। तो पी चिदम्बरम used the Laffer curve principle to lower tax rate and increase collection, that is a part of dream budget of 1997-98। मिलेनियम बजट, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, यशवंत सिंह ने बोला था रिगार्डिंग द आईटी इंडस्ट्री एंड ग्रोथ। रोल बैक बजट यशवंत सिंह ने ही दिया था रिगार्डिंग द रोल बैक ऑफ सो मैनी प्रपोजल्स which government is not in the condition to prepared or give। एंड वंस इन द सेंचुरी बजट तो नरेंद्र मोदी साहब का था, निर्मला सीतारमन, एम टू रिवाइव द इकोनॉमी रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन नेटवर्क, गति शक्ति, और ये 2021 में आया था, जिसे बोलते हैं वन इन अ सेंचुरी मिलेनियम बजट। तो ये हमारा बेस हो गया रिगार्डिंग द बजट। नाउ कम टू 2024 बजट हाईलाइट, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सक्लूसिव कवरेज एंड द डिस्क्रिप्शन अबाउट द बजट इन अ वेरी सेंसिबल एंड वेरी टारगेटेड मैनर, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। The overall tag of this government, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। तो अब 4 वर्ड आ गए, पहले था सबका साथ, सबका विकास, फिर आया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब आ गया सबका प्रयास। पार्ट ए, सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट ने बोला नाउ देयर इज नथिंग कॉल्ड एनी कास्ट, एससी एसटी ओबीसी, देयर आर 4 मेजर कास्ट, वन इज वुमेन, वन इज पुअर गरीब, महिला, यूथ एंड फार्मर।
तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट काज जिसके लिए हमें काम करना है। फिर से बोलो मेरे साथ, गरीब, महिला, यूथ एंड फार्मर। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। तो इस बजट में बोला गया गरीब का कल्याण, देश का कल्याण। गवर्नमेंट असिस्टेड 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द 10 ईयर। गवर्नमेंट बोल रही है हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। 25 करोड़ पीपल इज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 10 ईयर्स। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आपको पता ही होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स टू कंट्रोल द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल डेफिसिट। सीधा खाते में जाता है। जनधन योजना इज अ पार्ट, 34 लाख करोड़। पीएम स्वनिधि प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर। 10,000 रुपए हर स्ट्रीट वेंडर को दिए गए थे एज अ कोलेटरल फ्री लोन। पीएम जनमन योजना, ये पीवीटीजी के लिए था। भारत में दैट इज अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप 75 है, सबसे ज्यादा उड़ीसा में, सबसे कम राजस्थान में। शहरी इज द ओनली पीवीटीजी इन राजस्थान। उसके लिए एक योजना है पीवी जनमन योजना। एंड देन पीवी विश्वकर्मा योजना, अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने right now providing rural artisans and their overall progress, their goods can be sellable। खादी ग्राम उद्योग, ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया, उसी के लिए जो स्कीम है दैट इज नोन एज पीएम विश्वकर्मा योजना, टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिजन एंड क्राफ्ट पीपल एंगेज इन 18 ट्रेड्स। 18 ट्रेड्स के लिए है। अन्नदाता पीके पीएम किसान सम्मान योजना 11.8 करोड़ फार्मर्स को दिया गया, 2 लाख रुपीज पर एनम। पीएम फसल बीमा योजना 4 करोड़। एंड ई नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज, एपीएमसी मंडी को इंटीग्रेट करना। यूपी का फार्मर तमिलनाडु बेच सके, तमिलनाडु का फार्मर आंध्रा में, दैट इज नोन एज ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देन मोमेंटम टू नारी शक्ति, वुमेन इज ऑलवेज बी द सेंट्रल टू दिस गवर्नमेंट। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन गिफ्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मुद्रा इज रीफाइनेंसिंग ऑफ द लोन फैसिलिटी बाय सिडबी। इसके अंतर्गत वी आर प्रोवाइडिंग 30 करोड़ रुपीज और 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स। फीमेल एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन गॉन अप बाय 28%, जो पहले 18% था। मार्केट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इवन इंटरव्यू। तो फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन कितना बढ़ गया? 28%। इन एसटीएम कोर्सेज गर्ल्स एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 43% ऑफ एनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एसटीएम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। वी वांट दैट वुमेन शुड बी प्रमोटेड इन साइंटिफिक फील्ड, and that's why we are now increasing their overall enrollment to 43%. Over 70% houses under PM Awas Yojana give to women from rural areas. PM Awas Yojana Gramin, despite COVID challenges, the target of 3 crore houses under PM Awas Yojana Gramin will be achieved soon. तो इंडिया में 2 स्कीम है, ग्रामीण एंड अर्बन। 3 करोड़ हाउसेज का ओवरऑल टारगेट है, 50 स्क्वायर मीटर एंड 35 स्क्वायर मीटर। और गवर्नमेंट ने 70% हाउसेज इसके अंदर बना दिए जो वाकई में बनाए हैं। 2 crore more houses to be taken up in the next 5 years. फिर रिन्यूएबल एनर्जी इज द मेजर पार्ट। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स रूफटॉप सोलराइजेशन, मुफ्त की बिजली। हम सबको पता है सबसे पहले 2008 में आया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जवाहर सोलार मिशन। 20 गीगावाट्स टारगेट था, देन 100 गीगावाट्स हुआ, देन रूफटॉप सोलर प्लांट, कुसुम योजना, ड्राईलैंड वेस्टलैंड के ऊपर सोलर पैनल लगाना, सौभाग्य स्कीम, इंडिविजुअल हाउसेस के ऊपर सोलर पैनल लगाना। एंड फॉर दिस वी केम आउट विद द नेट मीटरिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं हर किसी के साथ थोड़ा इलेबोरेशन दूंगा दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स। तो 1 crore household to obtain 300 units free electricity every month through rooftop solarization. Each household is expected to save rupees 15,000 to 18,000 annually. हर हाउसहोल्ड का 15,000 से 18,000 रुपए बचेगा एनुअली। आयुष्मान भारत, health cover under Ayushman Bharat scheme to be extended to all आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो हेल्थ केयर कवर आयुष्मान भारत के अंदर सब लोगों को कवर करेगा, इंक्लूडिंग द आशा एंड आंगनवाड़ी। आशा प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है अंडर एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, एंड आंगनवाड़ी वर्कर आर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर प्लस न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द लैक्टेटिंग मदर चिल्ड्रन 0 to 6 years, and it is a scheme ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975। ओके, सब समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। Then agriculture and food processing, Pradhan Krishi Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers to generate 10 lakh employment. Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprise Yojana. तो गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है एज द पार्ट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना, 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड 60,000 इंडिविजुअल के लिए टू प्रोवाइड द क्रेडिट, ताकि छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग खोल सके। हरियाणा अटर्ना इज वन ऑफ द फेमस प्लेस रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग ऑफ मशरूम, बेबी कॉर्न एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं पद्मश्री मिला था जिन्होंने ये स्टार्ट किया उनको। देन प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स
and generated 10 lakh employment. Then Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprise, 2.5 lakh self-help group, 60,000 individual. To ensure faster growth of sector, government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chain, primary and secondary processing, marketing and branding, said Sitaraman. Then research and innovation for catalyzing growth, employment and development. Government ने 1 लाख रुपए का कॉर्पस रखा है, तो गवर्नमेंट इज नाउ प्रोवाइडिंग 1 लाख रुपीज कॉर्पस to be established with 50-year interest-free loan to provide long-term financing. 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग विद लॉन्ग टेन्योर एंड लो और नील इंटरेस्ट रेट. द न्यू स्कीम टू बी लॉन्च्ड फॉर स्ट्रेंथन डीप टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पस एंड आत्मनिर्भर भारत. तो ये जो 1 लाख रुपए करोड़ का फंड है, इट इज मेनली फॉर द डिफेंस एंड डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने बढ़ा दिया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू इंक्रीज बाय 11.1% to 11,11,11,1. That means 11,11 and 1,111 crore. That will be 3.4% of GDP. पहले था 2.5%, now it is 3.4%. तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बजट एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर कितना करते हैं 11.1%. दैट इज 11,11,111 करोड़. बहुत इजी याद करना. देन रेलवे, 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम आइडेंटिफाइड अंडर पीएम गति शक्ति. तो पीएम गति शक्ति के अंदर 3 नए मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम चलाए जाएंगे टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट टू एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर. वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह हम चलाएंगे. नमो ट्रेन भी चलाएंगे. एविएशन सेक्टर, नंबर ऑफ एयरपोर्ट इन द कंट्री डबल टू 149. पीटीएन मेंस एग्जामिनेशन. तो हमारे यहाँ के जो ओवरऑल एविएशन एयरपोर्ट है वो अब कितने कर दिए गए? 149. 570 न्यू रूट्स आर कैरिंग 1.3 करोड़ पैसेंजर्स. And Indian carriers have placed order for over 1,000 new aircraft. ये बहुत अच्छी न्यूज है. भारत के एविएशन कंपनीज अब 1,000 एयरक्राफ्ट को लीज या खरीदेंगी. देन ग्रीन एनर्जी हमारा टारगेट है, दैट इज नेट जीरो बाय 2070 आफ्टर ग्लासगो. तो कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन कैपेसिटी 100 मिलियन टन टू बी सेट अप बाय 2030. तो हम लोग कोल से गैसिफिकेशन करना चाहते हैं जिसमें मीथेन और इथेन दोनों होता है. तो याद रखना, मीथेन इज अ कोल बैटेड मीथेन, और जब कोल में से निकालते हैं वो इथेन निकलती है. फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीबीजी. अब हम जैसे हम इथेनॉल ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में, नाउ वी आर टारगेटेड टुवर्ड्स टू ब्लेंड कॉम्पैक्ट बायोगैस. बायोगैस मतलब मीथेन जो काउ डंग से निकलता है या गोबर से निकलता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन से निकलता है, उसको सीएनजी में मिलाएंगे. टूरिज्म सेक्टर, स्टेट टू बी एनकरेज टू कीप अप कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर इंक्लूडिंग देयर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एट द ग्लोबल स्केल. तो टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं. FDI inflow during 2014-23 is $596 billion. मतलब अराउंड 10 साल में $596 billion was twice the inflow between 2005 and 14. Reform in the state is विकसित भारत. तो अब गवर्नमेंट डेवलप्ड कंट्री बनाना चाह रहे हैं इंडिया को एज अ डेवलप्ड इंडिया. तो उसके अंदर हम लोग कह रहे हैं FDI हमारा 596 डबल हो गया है. 75,000 crore rupees 50-year interest-free loan is proposed to support milestone-linked reform by the state government. तो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा दैट दे विल इंक्रीज द एक्सपोर्ट 75,000 करोड़ रुपीस. फिर रिवाइज एस्टिमेट मैंने बताया 3 तरह के होते हैं. रिवाइज 2023-24 में टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग 27.56 लाख करोड़. ये इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. फिस्कल डेफिसिट एक्ट किया गया इस साल का 5.8%. पीटी एग्जामिनेशन मैंने 5.3 बताया था, रिवाइज करो 5.8%. फिर बजट एस्टिमेट 2024-25 इस साल का 30. टोटल एक्सपेंडिचर and that is borrowings and total expenditure 30.80 and 47.66. टैक्स तो बहुत कम आएगा. देखो अभी भी 26.02. इसका मतलब नई करेंसी छापनी पड़ेगी. दिस इज अ डेफिसिट. एंड फिस्कल डेफिसिट 5.1%. अगले साल के लिए एस्टिमेट किया. साल का कितना है 5.8% और अगले साल के लिए 5.1. टारगेट है 4.8 by 2526. क्लियर. फिर एक ही अवेज है कुछ चीजें आप देख सकते हो. कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़ का हो गया. फिस्कल डेफिसिट 5.1, इस साल का 5.8. गवर्नमेंट एब रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट नाउ 4.5. तो 4.8 से भी नीचे कर दिया 4.5 by 26. टोटल कैपेक्स आउटले 3.4% ऑफ जीडीपी. नेट मार्केट बोरोइंग 11.75 लाख करोड़. ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 14.1 लाख करोड़. टोटल एक्सपेंडिचर रिवाइज एस्टिमेट 44.90. डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 50,000 crore. पीटी एग्जामिनेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कट टू 30,000 crore फॉर 2024. क्लियर, ये आप याद रखेंगे. देन डिफरेंट एलोकेशन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वो आप देख सकते हैं. नाउ सम अदर पार्ट. टुवर्ड्स मीटिंग द कमिटमेंट फॉर नेट जीरो बाय 2070
कैसे हम लोग कमिटमेंट करेंगे बाय नेट जीरो 2070। वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट किसका होगा? प्राइवेट का। इट इज अ रिस्की फंडिंग, है ना। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग वी आर नाउ प्रोवाइडिंग टू ऑफशोर विंड एनर्जी। तो ऑफशोर विंड एनर्जी का इंडिया का लार्जेस्ट पोटेंशियल क्या है? गुजरात में, ऑफ द कोस्ट ऑफ द्वारका, सोमनाथ। क्लियर। कोल गैसिफिकेशन मैंने बताई थी 100 मिलियन टन 2030। देन सीबीजी को करना है, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी टू सपोर्ट कलेक्शन। Then here are key announcement made budget regarding infrastructure development। ये हमने कर लिया 11.1% इंक्रीज। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को 75,000 करोड़ रिगार्डिंग गति शक्ति। 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 1 फॉर एनर्जी मिनरल सीमेंट, 1 फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी एंड 1 फॉर हाई ट्रैफिक डेंसिटी। एंड 40,000 नॉर्मल रेलवे बॉगीज कन्वर्ट किए जाएंगे अंडर वंदे भारत स्टैंडर्ड। नमो ट्रेन एंड मेट्रो रेल सर्विसेज इन ऑल द मेजर मेट्रो सिटीज। डेयरी फार्मिंग अदर टारगेट है गवर्नमेंट का अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड नेशनल लाइवलीहुड मिशन। एंड मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विल बी स्टेप्ड अप टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी 3 to 5 टन पर हेक्टेयर। तो हम लोग अपनी मछली उत्पादन को भी बढ़ाना चाहते हैं फ्रॉम 3 to 5 टन पर हेक्टेयर। डबल द एक्सपोर्ट टू 1 लाख करोड़। तो फिश और मराइन एक्सपोर्ट को हम 1 लाख करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। एंड जनरेट 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द नियर फ्यूचर। और 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स खोलेंगे पूरे इंडिया के अंदर। सोशल सेक्टर में पीएम आवास योजना ऑलरेडी मैंने बता दिया, 2 करोड़ मोर हाउस बनाए जाएंगे। रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली 300 यूनिट दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट हर गरीब और हाउस होल्ड को। एंड 1 करोड़ हाउस होल्ड को दिया जाएगा कम से कम रूरल एरियाज में। देन हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास, गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम टू हेल्प डिजर्विंग सेक्शन ऑफ द मिडिल क्लास लिविंग इन रेंटेड हाउसेस, स्लम्स, चवाल्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनी टू बाय और बिल्ड देयर ओन हाउस। तो अभी तक गरीबों के लिए था, मिडिल क्लास के लिए भी गवर्नमेंट चाह रही है दैट दोज हु आर ऑन द रेंटेड हाउस और स्लम्स उनको अपना घर मिले। मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप मोर मेडिकल कॉलेजेस बाय यूटिलाइजिंग द existing hospital infrastructure under various department. A committee for this purpose will be set up to examine the issue and make relevant recommendation. Then cervical cancer vaccination। तो इसके अंदर जो आपका नया इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हमने दिखाया है। सीतारमन ने 25 करोड़ लोगों को बोला पॉवर्टी से बाहर आने के लिए, और प्रोवाइड फ्री फूड टू 80 करोड़ पीपल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके अंदर अनस्किल्ड बता दिया हमने आपको। इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट हाईलाइटेड द रोल ऑफ मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया चाहेगा एज अ काउंटर ऑफ ओबीओआर। इन्फ्लेशन को पैक किया जाएगा बिटवीन द टारगेट ऑफ 2 to 6%। नॉमिनल एंकर था 2-4% ±2%, दैट मींस बिटवीन 2 to 6%, वही है नचिकेत मोर रिकमेंडेशंस के द्वारा। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज पिक्ड अप एंड एवरेज रियल इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज बाय 50%। गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 million affordable houses in the rural area, cervical cancer। तो all the recommendation is there in a very good manner। Then part B, tax में कुछ भी चेंज नहीं आया है, all the tax the provisions are almost same। PM proposes to retain same tax rate for direct tax। 5 लाख रुपए तक का आपको एग्जम्पशन था जो 7 लाख कर दिया गया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Direct tax collection tripled, return filer increased 2.4 times, government to improve taxpayer services, outstanding direct tax demand up to 25,000 pertaining to the period 2010 withdrawn। तो सब चीजें वही हैं, स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो ये आप देख सकते हैं। So this budget is giving attract investment, build support to much needed reforms, give hope to people। The government succeed with a strong belief of nation first, and government will lay a white paper on the table of house। So these all are the important things and the dimension। ये handout आप upload कर सकते हैं in the PDF, download कर सकते हैं from PDF format, और इसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। And we as Aspire is always trying to help the students। That's why we are like a rehabilitation center for all the students who are struggling। We are now coming out with one of the important batch related to PT examination, that is mentorship daily MCQ। 3 महीने का बैच होगा जिसमें हम 7-7 दिन का टारगेट देंगे, एंड देन एवरी वीक वी कैन टेस्ट 45 MCQ फ्रॉम माय साइड विद एक्सप्लेनेशन। Target is you can complete your syllabus with revision, regular MCQs, even you will get the detailed analysis of all the MCQs which will fill the gap। If you want any type of consultation, you can directly contact us। Hope you like this video, share with your friends। It will really 100% help anybody who is preparing for this upcoming preliminary or specialty test। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।